Hello, Varsha. How are you? I am fine. And how are you? Yeah, I'm good. Thank you for asking. So today we are going to Same here. learn. Uh, okay. So today we are going to learn about basic things. All right. The words that we use in our daily life. Okay. These are basics, but still I'm going to teach you ताकि आगे जा करके if you will feel कि हाँ ठीक है ये word आया इसका क्या meaning है just for the sake of that. So यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे how to ask and answer about names. So if somebody is asking your name, for example, right now we just have we did conversation right now that how are you? Mm. I'm fine, thank you, like this. So how to ask and how to answer about names. So we are going to do things related to name. So what's your name? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम व्हाट इज योर नेम बोलते हैं इसको कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में हम व्हाट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपॉस्ट्रोफी एस हो जाएगा। बट वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर कि ये हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं। दैट मीन्स वी यूज इट इन आर स्पोकन लैंग्वेज। ओके, व्हेन वी हैव टू स्पीक देन वी विल से व्हाट्स योर नेम। बट अगर मुझे फॉर्मली कहीं पे बोलना है या लिखना है राइटिंग में, then we will write what is your name. So written format में this is not correct. So let's Okay. see. Oh, yeah. So let's see few words that we will learn to use. A. Okay. So I would like you to read these words. Can you read it for me, please? Yes. How are the words you will learn to use? Good. A. Book. Brother. Camera. Car. Cell phone. Daughter. Family. Father. Her. His. House. Husband. Is. Isn't. At. It. See the red one where I'm putting the red mark. Go to that word. Okay. My name. No. Are. Pan. This. This is. Uh, World. Wallet, purse. Wallet. When we use wallet. Yes. Watch. What? 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 Not what. What? 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 Whose? Wife? Yes. Your. There. There. The. There. 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 The. Son. Sister. Purse. This is like the. When we say normally it's a the. दी कब बोलते हैं जब आप कोई भी वर्ड बोल रहे हो, ठीक है, एंड दैट इज लाइक फॉर एग्जांपल the elephant. Okay, so here we will use the elephant. दी क्यों बोलेंगे क्योंकि ई जो है ये मेरा वॉवेल साउंड दे रहा है, ठीक है। सो जो भी वॉवेल साउंड वाले वर्ड स्टार्ट होंगे वी हैव टू यूज दी फॉर दिस वर्ड। ओके, सो दी व्हाट यू कैन से, कोई एक वर्ड बताओ आप। The animal. नहीं. ओके दी, यहाँ पे एनिमल में जो ये लगेगा इसको द बोलेंगे। इट विल बी द एनिमल बिकॉज ए जो है ओके या गुड द एनिमल बिकॉज दिस इज ऑफ वॉवेल साउंड। तो द एनिमल, Double. अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा जैसे फॉर एग्जांपल बुक होगा तो ये द बुक हो जाएगा। बट अगर कोई ऐसी Okay. वर्ड है जिसकी साउंड वॉवेल आ रही है देन वी विल यूज दी। तो कॉमनली विल से द, ठीक है। ओके, now read this. Pen. Are. No. Is. Isn't. Good.
और ये क्या होगा? Is not. दिस वन, Is it? दिस, It. इट, It's. Key. ये, It is. Key. Laptop. Mother. गुड. No problem in pronunciation. Very good. Now we'll see this. Read this one. My name's. I don't know. No. आपने क्या किया? आपने पॉज ले लिया, ठीक है? सो एक लाइन में बोलो. I don't know. या बट इसको और नेचुरल साउंड करने के लिए कैसे बोलेंगे? आई डोंट नो. I don't know. आई डोंट नो. I don't know. या दिस वन. Excuse me. Thank you. गुड. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देखेंगे हम जो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ठीक. Annie is my sister. हम्म. Tom is my brother. This is my house. Whose book is this? It isn't your book. Is this your camera? What's your name? Good. Now I'll teach you some basic things related to these sentences. हमने कितने sentences देखे? 3 3 6 एक साथ. Total 7 sentences we have seen here. ठीक है? अब मैं बेसिक चीजें बता रही हूँ आपको. Sorry for the mistake. अब मैं यहाँ 1 बोलती तो ये 1 सेंटेंस होता, ठीक है? मैंने एक से ज्यादा सेंटेंस बोला, 7 बोला, तो यहाँ पे 7 सेंटेंसेस लिखा मैंने. एक ये बेसिक सा चीज था, ठीक है? ये सिंगुलर है इसलिए मैंने सेंटेंस लिखा. ये प्लूरल है क्योंकि एक से ज्यादा है. 7 सेंटेंस के बारे में बात हो रही है तो 7 सेंटेंसेस लिखा. अब फर्स्ट वाला देखते हैं. एन इज माई सिस्टर. अब मैं अगर यहाँ पे कहूँ निकिता, तो हाउ विल यू मेक सेंटेंस? Nikita is my sister. गुड. इफ आई वुड से कि यहाँ पे निकिता यूज नहीं करना है, इसके बिहाफ में जो है ही और शी यूज करना है, तो कैसे करेंगे? She is my sister. गुड. टॉम इज माई ब्रदर. टॉम के लिए क्या यूज करेंगे? He. He गुड. is my brother. वाई वी आर यूजिंग ही फॉर टॉम? Because of Tom boy है. Boy के लिए ही लगाते हैं. बॉय है और ये लाइक या फिर मेल है, सो वी यूज ही. और He. ऑलराइट, सो दिस इज माई हाउस. तो यहाँ पे अगर दैट होगा तो क्या होगा? That is my house. गुड. आर लगेगा क्या दैट के साथ? नहीं, easy आना चाहिए. Good. That is my house. Because that and this is what? Singular. ठीक है? That or this just like he or she or it क्या है? Singular है. Okay? So this is one basic thing. And when we use that for something far away from you. अगर आप यहाँ पे हो और something is just far away from you, कुछ किताब है या कोई book है या फिर कुछ भी हो, कोई भी object हो, that is far away from you. So we use that. और this किसके लिए use करते हैं? जरा Sorry? this के लिए. पास के लिए. ठीक है? कोई भी चीज जो अगर आपके नियर हो, that for that purpose we use this. All right. कोई doubt? No. Good. Whose book is this? So you're asking किसकी किताब है ये? Whose book is this? So this is question mark sentence. ठीक है? मैंने whose यूज किया, फिर मैंने जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम वो उसके बारे में बोले. ठीक है? बट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है? बुक. Whose book is this? किसकी किताब है ये? सो अगर मैं कहूँ कि निकिता's book is this, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? निकिता's book is this नहीं लगाएंगे. निकिता's book निकिता की बुक है. ठीक है? निकिताज क्यों लगाएंगे? एस क्यों लगाया?
फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछता है व्हाट्स द नेम ऑफ योर फादर, इसका आंसर कैसे करोगे आप? My father name is HK Sahu. माई, My father name is HK Sahu. ओके, यू आर सेइंग माय फादर नेम इज HK साहू, राइट? Hmm. So this is wrong. Why this is wrong? Because आपने कहा माय फादर नेम, ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स का मतलब क्या है? क्या? कॉन्ट्रैक्शन है ना ये। अगर मैं इसको तोड़ू तो कैसे लिखेंगे वर्ड को? What is? गुड। क्या इस निकिता's बुक में निकिता को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, निकिता इज बुक? No. नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? निकिता बुक है, यही आ जाएगा ना मीनिंग। मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करा रही हूँ, बट मैं एक टाइप लाइक कॉन्टेक्स्ट समझा रही हूँ, ठीक है? Hmm. तो मैं कहूँ मेरे मेरे फादर का नाम हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरे पापा का नाम बोलते हैं ना, इन हिंदी भी से का नाम। Hmm. सो इधर माय फादर्स नेम इज HK साहू, ओके। माय सिस्टर्स नेम इज विनीता। माय सिस्टर्स और माय ब्रदर्स नेम, तो वहां पे हम ब्रदर्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, सिस्टर्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, मदर्स में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है? सो दिस इज अबाउट टेलिंग कि हाँ मेरे भाई का नाम है, तो मेरे भाई का नाम है, मेरे सिस्टर का नाम है, मेरी माँ का नाम है, मेरे फादर का नाम है। तो माय फ्रेंड्स नेम, मेरे फ्रेंड का नाम ये है, सो माय फ्रेंड्स नेम इज दिस, ओके। सो यू आर यूजिंग फ्रेंड्स, ठीक है? सो हुज बुक इज दिस? निकिता's बुक इज दिस, निकिता's बुक। नॉर्मल शॉर्ट में बोले निकिता's बुक। Hmm. इतना क्लियर हो गया? क्या डिफरेंस था? बेसिक चीज, कुछ नया सीखा? Hmm. ओके, इरेज कर दूं? लिखना है कॉपी में तो इसको आप लिख लो कॉपी में, याद रहेगा, ठीक है? लिखना है? लिख रही हूँ। ओके, व्हेन यू आर डन लेट मी नो। Okay. ठीक है। गुड, कैन आई इरेज इट? Yes. Now this is, it isn't your book, right? It isn't your book, ये तुम्हारी किताब नहीं है, ओके? It's her, ये उसकी है। सो व्हेन आई एम सेइंग इट्स हर, तो मैं किसको डिनोट कर रही हूँ? एक गर्ल को डिनोट कर रही हूँ, राइट? है ना? Hmm. अब मैं कहूँ इट्स हिज, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? मैं किसी लड़के को डिनोट करके कह रही हूँ ये तो उसकी है, ये उसकी है, या उसकी है, ठीक Hmm. है? इट्स नॉट योर बुक, इट इजंट योर बुक, इट्स हिज, या फिर इट्स देयर्स। आप समझ में आ रहा है? ये जो हर, हिज, देयर्स, आप में से पूछे थे ना माइन, ये कहाँ यूज करते Hmm. हैं, ठीक है? सो इट्स माइन, इट इजंट योर बुक, इट्स माइन, ये मेरी किताब है भाई, ठीक है? तो मैं जब ये हर, हिज, देयर्स, माइन, आर्स यूज कर रही हूँ, इट्स आर्स, दैट मीन्स, It's my mine होगा। अच्छा, it's my। नहीं माइन नहीं होगा, इट्स माइन होगा, माइन, एम आई यानी माइन, ये मेरी है। अगर मैं कहूँ ये मेरी किताब है, तो मैं वहां माई बुक यूज करूंगी, क्योंकि मैं उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लेके आ रही हूँ। ये पेन मेरी है, ये मेरी पेन है, तो मैं उसके साथ ऑब्जेक्ट लेके आ रही हूँ। अगर मैं कहूँ ये मेरी है, तो आई वुड से इट्स माइन, मुझे इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये एंड में आ जाएगा सिर्फ आपका हर, हिज, देयर्स, माइन, आर्स। क्लियर? Hmm. ठीक है। इज दिस योर कैमरा? क्या ये तुम्हारा कैमरा है? इज दिस योर कैमरा? यस, इट, This is my camera. ये भी बोल सकते हैं। यस दिस इज माइन, ये भी बोल सकते हैं। यस इट इज, ऐसा भी बोल सकते हैं,
ठीक है, इज दिस योर कैमरा? यस इट इज। इट से भी डिनोट कर सकते हैं। व्हाट्स योर नेम? सो माय नेम इज निकिता। व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम? माय ब्रदर्स नेम इज दिस। व्हाट्स योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज दिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा बेसिक सा चीज क्या याद रखना है, माय फादर्स नेम इज, मैंने यहाँ पे आर नहीं यूज किया, ठीक है। व्हाट्स योर नेम है तो माय फादर, माय नेम इज, मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा माय नेम इज तो मतलब सिंगुलर आ रहा है, मेरे फादर का नाम है तो भी सिंगुलर आ रहा है, मेरे फादर क्या हुए, सिंगुलर हुए, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय फादर आई विल यूज ही इज, ठीक, ही वर्क्स, यहाँ पे एस यूज करेंगे फादर के लिए, सिस्टर के लिए, ब्रदर के लिए, क्योंकि वो सिंगुलर है। मैं एक से ज्यादा लोग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, तो थर्ड पर्सन में मैं उनके लिए ही और शी यूज कर रही हूँ, तो आई यूज सिंगुलर, मतलब इज यूज होगा, ठीक है। अगर हम सिंपल ऐसे बात कर रहे हैं कि वो कुछ करते हैं, सो ही वर्क्स इन कंपनी, तो यहाँ पे ये ही वर्क्स इन कंपनी मीन्स क्या हो गया कि वो कंपनी में काम करते हैं, तो मैंने एस लगा दिया, ठीक है। जब भी हम सिंपल वाले बात करते हैं किसी उनके रूटीन के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो हम एस ई एस आई ई एस लगाएंगे, तो यहाँ पे मतलब सिंपल हो जाएगा उनके बारे में। अगर वो है तो ही के साथ ही वॉचेज, ही वॉचेज व्हाट, ही वॉचेज न्यूज एवरी डे, तो न्यूज इज समथिंग, वो डेली न्यूज देखते हैं, तो ही वॉचेज न्यूज एवरी डे, इस टाइप से सेंटेंस बनता अच्छा, है। डेली में ईएस लगाते हैं। डेली में ई एस नहीं लगाते हैं। अगर हम किसी ऐसे चीज के बारे में बात करें जो मेरा रूटीन है, ठीक है, जो मेरा हैबिट है, ओके, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मैं ऑफनली करती हूँ या फिर रेयरली करती हूँ, एडवर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है। किसी भी काम को आप कितने ऑफन करते हैं, कितने रेयरली करते हैं, या फिर कितनी ज्यादा बार करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, नेवर, ठीक है। बट हम एस ई एस कब लगाते हैं, ये हम तभी लगाते हैं जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है, हैबिट, रूटीन, फैक्ट, ठीक है, ऐसी चीजों के लिए यूज करता है। तो लेकिन एस ई एस कहाँ लगता है, जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया ना, थर्ड पर्सन में जब हम ही की बात करते हैं, शी की बात करते हैं, इट की बात करते हैं, या फिर किसी सिंगुलर नेम की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल आप मोमेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं, तब आप यूज करते हो एस ई एस आई ई एस, ऐसे लाइक लोगों के लिए जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं किसी के सामने, उनमें यूज होता है। क्लियर है इतना? बट अगर मैं वही फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात करूं, जैसे आई, वी, यू, दे, तो इनके साथ मैं सिंपल वर्ब यूज करूंगी, जैसे दे वॉच, ठीक है, आई वॉच, वी वॉच, समझ में आ रहा है? ऐसी एस का डिफरेंस समझ में आया? तो क्या है ना कि ध्यान रखना है बोलने के में, आई वॉच मूवी ऑन सैटरडे, तो मतलब है कि मैं हर सैटरडे को मूवी देखती हूँ, सो आई वॉच मूवी ऑन सैटरडे, ये मेरा डेली रूटीन है भाई, मतलब यस आई वॉच मूवी एवरी सैटरडे, और लाइक आई वॉच मूवी ऑन सैटरडे। दे दे वर्क इन हॉस्पिटल, सो दे वर्क इन हॉस्पिटल मीन्स व्हाट, इट्स देयर वर्क। अब इनका काम चेंज तो नहीं होगा ना, ये तो डेली बेसिस पे चल रहा है इनका काम, तो ये ऐसे सेंटेंसेस जो डेली बेसिस पे होते हैं उसमें हम सिंपल यूज करते हैं, वी वन यूज करते हैं, मतलब वर्ब जो बेस फॉर्म होता है ना, सोना, खाना, पीना, नॉर्मल जो सिंपल सा होता है, जैसे रीड, राइट, ठीक है, स्लीप, ये सारा क्या है, सिंपल है। हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि हाँ सोने को स्लीप कहते हैं, लिखने को राइट कहते हैं, रीड, पढ़ने को रीड कहते हैं, तो सिंपल है। इस सब्जेक्ट्स के साथ जो है हम ये ऐसे ही यूज करेंगे, नॉर्मल, कोई चेंजेस नहीं होगा। जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे चीज के बारे में, मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, या फिर कोई फैक्ट है, जैसे द सन, अब जैसे मानो कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, द सन, सन तो एक ही है ना, सन तो चेंज नहीं होगा, दो चार नहीं है, एक है, तो उसके लिए मैंने यूज किया राइजेस। अब अगर मैं कहूंगी कि सन के लिए यूज करते हैं राइज, अब मैं जैसे बोलूँ कि मैं सुबह उठती हूँ, सो आई वेक अप इन द
मॉर्निंग, ठीक है। मैं मॉर्निंग पर्सन, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। मैंने वेक यूज किया, यहाँ पे वेक्स यूज नहीं किया आई के साथ। अब मैं कहूँ ही, तो मैं बोलूंगी ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग। क्लियर? कहाँ पे एस ई एस लग रहा है? ठीक है, इसमें क्यों नहीं किया? आई कब इन ये रूल है, मतलब वॉक। ये ऐसे ही चलता है इंग्लिश में। इसके लिए कोई लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं करते हैं, क्यों करते हैं। इट्स लाइक कि अगर मैं कहूँ कि यू है तो यू के साथ आर ही आएगा। इसका कोई आंसर नहीं है कि इसके साथ इज क्यों नहीं आएगा या फिर इसके साथ एम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आई के साथ ही एम आता है, यू के साथ आर आता है, वी के साथ आर आता है, दे के साथ हम आर यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या आ गया आपका? दो नाम है, एक से ज्यादा नाम है, जैसे निक एंड जॉन, तो इसके साथ भी हम आर यूज करेंगे। अब सिंपल जॉन है तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? इज। निक है तो उसके साथ इज, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। तो सिंपल सा फंडा है कि आई के साथ एम आएगा, बाकी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ जो है मेरा आर आएगा, और थर्ड पर्सन जितने हैं प्लस सिंगुलर नेम, उसके साथ हम इज यूज करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर? डन? ओके। एक फीड कर दो, समझ ही नहीं आया। क्या क्या क्या? हाँ मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो आप, मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था, राइट? फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड हम्म, पर्सन मैंने आपको बताया था। अब मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे हम यूज ये कर रहे हैं ई सिंगुलर। समझ में नहीं आया। हाँ मैं बता रही हूँ, ये हुआ प्लूरल, ठीक है। सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। अब मैं फर्स्ट पर्सन में यूज कर रही हूँ आई वी। हम्म ये होता है, ये मैं नहीं बना रही हूँ, ये इंग्लिश ऐसे ही बन के आया है। सेकेंड पर्सन में हम यू यूज करते हैं, प्लूरल में भी यू यूज करते हैं। थर्ड में हम ही यूज करते हैं, शी यूज करते हैं, इट यूज करते हैं, या फिर कोई सिंगुलर नेम यूज करते हैं। ठीक है, और या हम्म प्लूरल में हम दे यूज करते हैं, या फिर कोई प्लूरल नेम यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? हम्म हम्म अब इतना तो पता है मुझे कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो कौन होता है? स्पीकर होता है, ठीक है। हम्म सेकंड पर्सन कौन है? लिसनर, या फिर जो लाइक जो सुन रहा है, अ पर्सन हु इज हियरिंग, ठीक। थर्ड हम्म। पर्सन कौन है? थर्ड पार्टी, जिसको जिसके थर्ड बारे में पार्टी। हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल काजल अभी हम्म क्लास में प्रेजेंट नहीं है, मैं क्या बोलूंगी? शी इज अ वेरी नाइस स्टूडेंट। तो मैंने शी यूज किया किसके लिए? काजल के लिए यूज किया, ठीक है। बट शी इज नॉट प्रेजेंट इन द रूम, तो वो थर्ड पार्टी हो गई, ठीक। तो अब हम्म अब इसमें इतना याद रखना, ये जो ऊपर का है ना मेरा, आई हम्म बी यू, ठीक है, ये और ये वाला पोर्शन, इसके साथ हम हम्म सिंपल वर्ब यूज करते हैं, जो बेस फॉर्म होता है, जो मतलब एक्चुअल मीनिंग होता है वर्ड का। फॉर एग्जाम्पल रीड। मैंने आपको ये भी बोला कि आपको तीन फॉर्म यूज याद करने हैं, इरेगुलर रेगुलर वर्ब्स, जिसमें तीन फॉर्म आते हैं, V1 V2 V3 हम हम्म बोलते हैं। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन पार्टिसिपल। तो उसमें क्या होता है? रीड, फिर रीड के साथ रेड यूज करते हैं, फिर रेड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरा? ये V1 V2 V3 यूज करते हैं। बट सिंपल प्रेजेंट में हम सिर्फ V1 यूज करते हैं, जैसे नॉर्मल स्लीप, ठीक है, हम्म। वेक, ड्रिंक। तो ये जो सिंपल V1 है, जो नॉर्मल बेस फॉर्म है, वो इनके साथ जाएगा, ठीक है। अच्छा। और जो मेरे साथ एस ई एस आई एस लेके आता है, वो ये वाले होते हैं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर, ठीक। समझ में आ गया? ओके। तो ये जब हम और प्रेजेंट दे पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद रखना है कि आई यू दे वी यू। फिर। हाँ ये भी मैंने ब्रैकेट में डाला ना, इसके साथ भी ये यूज होगा, सिंपल वाला, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है, प्लूरल नेम है, प्लूरल नेम के साथ V1 जाएगा, ठीक है। ओ, जो सिंगुलर ठीक वाला है। है, ISEIS ये वर्ड के अकॉर्डिंग होता है। हम इसमें सीखते हैं, जैसे वॉच है तो CH एंड में आ रहा है तो इसमें वॉचेज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे स्लीप है तो इसमें S आएगा, स्लीप्स हो जाएगा। फिर IES है, जैसे बेबी है, बेबी में हम ये बचपन में पढ़ते थे, वाई को कट कर देंगे और प्लूरल के लिए हम बेबीज यूज कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया?
बस ये बेसिक है, इतना बस याद रखना है। क्लियर? ओके। ओके, ठीक है। तो बस हम ये पेज पढ़ते हैं आज। ओके, वी आर ओके। रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो दिस इज रिटन व्हाट? रीड इट फास्ट। व्हाट्स? मैंने ब्लू पेन कहाँ टिक किया है? व्हाट इज? दिस वन। व्हाट्स? माय नेम इज। माय नेम। माय माय नेम्स। नेम्स। माय नेम्स। ओके, हम्म। फाइन। नाउ सी दिस वन। बड़ा हो गया, एक मिनट रुकना। क्या टिक क्या किया? ओके। व्हाट्स योर नेम? इसको ना थोड़ा सा मतलब फील के साथ बोलो आप। व्हाट्स योर नेम? नेम। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? गुड। माय नेम्स जिम। माय नेम्स माय नेम निकिता। जेम बेंसन। ओके, माय नेम्स जिम बेंसन। तो इसने क्या कहा? माय नेम इज ना बोल के इसने बोला माय नेम्स जिम बेंसन। ठीक है, अगेन व्हाट्स योर नेम? रिपीट। नेम। आई एम आस्किंग यू नाउ, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? आप अपने नाम को साथ में बोलो। माय नेम्स वर्षा गुप्ता। गुड। नेक्स्ट, सेम चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हम्म। रिपीटेशन क्यों दिया है? ताकि आपको याद हो जाए। अगेन थर्ड नंबर, द विल्सन फैमिली। दिस वन। व्हाट्स योर नेम? माय नेम्स वर्षा गुप्ता। ये वाला नाम पढ़ो अब आप। माय टॉम नेम्स टॉम बेंसन। बेंसन। माय नेम्स एनी बेंसन। ठीक है, बेंसन। यस। बेंसन फैमिली है। ठीक है, अब ये हम कल करेंगे। हम्म। आज के लिए इतना ओके। ही है। सो आई होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला, राइट? बहुत। हम्म। ये हाँ, तो ये एस पता चला, मुझे तो पता ही नहीं था कब लगाते हैं। ई। ई एस आई yes. एस। हम्म। और दिस का यूज क्लियर हो गया मेरा। कि दिस का पास के लिए लगाते हैं, डेट हो तो दूर के लिए यूज करना है। हाँ जी। और क्लियर हो गया। और साइनोनिम्स हाँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम यूज। कल रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इट इज लेस देन 1 मिनट, तो रिकॉर्डिंग कभी भी खत्म हो सकती है।